فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام کی والیوم 11 سے مکتوب 77 کا ترجمہ اور شرح و تفسیر۔ یہ والیوم 11 میں ہے اور یہ شرح نہج البلاغہ جس کی تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی ہے۔ آئیے مکتوب 77 جو والیوم 11 کے صفحہ نمبر 341 پر ہے مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وصیت عبداللہ بن عباس علیہ السلام کے نام۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں خوارج کے مقابلے میں اتمام حجت کے لیے روانہ فرمایا۔ آئیے سامعین پڑھتے ہیں مکتوب کی سند۔ لکھا ہے مؤلف مصادر نہج البلاغہ لکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کا یہ کلام مشہور ہے۔ ابن اسیر نے اسے کتاب نہایا، کتاب کا نام ہے نہایا، میں لفظ حمال ہے میم الف لام میم پہ تشدید ہے، حمال کے ذیل میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جبکہ زمخشری نے بھی ربیع الابرار میں کچھ دیگر اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ سب اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہوں نے اسے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے حاصل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 467۔ اور اب آئیے مکتوب پر ایک نظر کے عنوان سے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی اس نصیحت میں ابن عباس رضی اللہ کو جب آپ علیہ السلام انہیں خوارج کے ساتھ بحث و گفتگو کے لیے روانہ فرما رہے تھے، خوارج کے مقابلے میں استدلال کی روش سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، قرآن کی ان متشابہ آیات سے دلیل پیش نہ کرنا جن کی مختلف تفسیریں ہو سکتی ہیں، بلکہ سنت سے استدلال کرنا جو واضح اور روشن ہے۔ ہم جانتے ہیں خوارج آیت شریفہ ان الحکم الا للہ جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کا ہے، اس کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ جس حکمیت کو علی علیہ السلام نے شامیوں کے مقابلے میں قبول کیا ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ آیت حکمیت کو صرف خدا کے لیے بتاتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آیت اس مفہوم کے تناظر میں نہیں ہے، کیونکہ یہ حکمت کو احکام کلی میں خدا کے لیے بیان کرتی ہے، نہ کہ جزوی اور ذاتی موارد میں، اور ان کلیات کی جزوی موارد پر تطبیق حکمین کے توسط سے انجام پانی چاہیے، لیکن وہ اپنے غلط گمان پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اگر ابن عباس رضی اللہ مثلاً ان کی جو معروف حدیث ہے جو کہ بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ 480 پر موجود ہے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی مع الحق والحق مع العلی یدور ہی سما دارا، اور یا پھر دوسری حدیث ہے کہ جس کا حوالہ ہے کہ بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 103 اور حصہ نمبر 11، اور حدیث کچھ یوں ہے کہ اللہم والی من وعلاہ وعادی من آداہ ونصر من نصرہ والخذل من خذلہ
अच्छा, इसमें कुछ जेर ज़बर पेश आगे पीछे होते हैं, इसलिए गलती के इम्कानात हैं, उसके लिए माजरत। तो ये इसका हवाला बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 103 और हिस्सा नंबर 11 है। तो इससे ये जो दो अहादीस हमने पढ़ी, इससे इस्तदलाल करें जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त नकल हुई हैं, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और अब आइए सामीन मकतूब के मतन का जायजा लेते हैं, बल्कि पहले उसकी अरबी की जो वो सिर्फ 2 लाइनों पर मुश्तमिल है। आगाज हो रहा है ला तुखासिमुहुम और इख्तिताम है व अनहा मुहीसन, स्वाद से है मुहीसन। तर्जुमा देखो उनसे कुरान के बारे में बहस न करना कि इसके बहुत से वजूह व एहतमालात होते हैं और इस तरह तुम अपनी कहते रहोगे और वो अपनी कहते रहेंगे, बल्कि उनसे सुन्नत के जरिए बहस करो कि उससे बचकर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। बस ये बहुत ही मुख्तसर सा मकतूब है, मकतूब 77। आइए शरह तफसील पढ़ते हैं। हेडिंग है खवारिज के सामने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस्तदलाल करो। आइए तफसील जानते हैं। तवारीख से बखूबी इस्तिफादा होता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम हरगिज खवारिज को कत्ल करना नहीं चाहते थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने हत्तल इम्कान उन्हें राह हिदायत पर लाने की कोशिश फरमाई, क्योंकि खवारिज के और हाकिम शाम और उन साथियों के दरमियान काफी फर्क था। हाकिम शाम और उसके तरफदार जानबूझकर और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की बिना पर बातिल के राह पर थे और उन्होंने उसे पा लिया था, मगर ख्वारिज हक के पीछे थे और नादानी और तासुब की बिना पर बातिल का शिकार हुए थे। इसीलिए खुद इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह को उनसे गुफ्तगू के लिए रवाना फरमाया। ये बात तो हम जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू ने खवारिज पर बहुत असर किया और उनकी अक्सरियत राह हक की तरफ लौट आई और कुछ तादाद बातिल पर डटी रही और इमाम अलैहिस्सलाम से जंग के लिए तैयार हुई। इमाम अलैहिस्सलाम इस कलाम के आगाज में फरमा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा कि देखो उनसे कुरान के बारे में बहस ना करना कि उनके बहुत से वजूह व एहतमालात होते हैं और इस तरह तुम अपनी कहते रहोगे और वो अपनी कहते रहेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये एक हकीकत है कि कुरान की बाज आयात मुतशाबे हैं जो मुख्तलिफ और कभी तो मुतजाद मानी पर भी महमूल की जा सकती हैं, जबकि आयाते मुहकमात और गैर मुतशाबे की वाज़े तफसीर की जा सकती है। इसीलिए जिन लोगों के दिलों में रोग होता है और जो अपने खास मकसद के पीछे होते हैं, वो आयाते महकमात की तरफ रुजू किए बगैर मुतशाबे आयात को अपने मकासद पर महमूल करते हैं। मसलन कुरान मजीद के सूरह क़यामत की आयत नंबर 22 और 23 में इरशाद होता है इन्वर्टेड कॉमा के उस रोज बहुत से चेहरे तरोताजा और बारौनक होंगे, अपने रब की तरफ देखते होंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो एक ग्रोह ने उसकी यूं तफसीर की है कि क़यामत के दिन लोग अपनी जाहिरी आंखों से खुदा को देखेंगे, जबकि कुरान अपनी मुहकम और वाज़े आयत में फरमाता है इन्वर्टेड कॉमा जो कि सूरह इनाम की आयत 103 है कि तर्जुमा के आंखें उसे नहीं देख सकती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान में जब आप अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज की इन्वर्टेड कॉमा कि तो अर्ज की कि परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा ताकि मैं तुझे देख लूं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। यहाँ पर तो साथ ही ये लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया कि लन तरानी, कि मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये यहाँ पर सूरह अराफ की आयत 143। आगे चलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ, लेकिन चूंकि कुरान की आयात उमूमियत और कुल्लियत की हामिल हैं और अक्सर मसादीक की निशानदेही नहीं की गई है, लिहाजा खुद गर्ज और दिल में रोग रखने वाले अफराद तफसीर बिर राय की रविश से फायदा उठाते हुए उन उमूमियत की हामिल आयात को अपने मकासद पर महमूल करते हैं जो उनकी और दूसरों की गुमराही का सबब बनते हैं। मगर सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक्सर मकामात पर मसादीक की निशानदेही की गई है। ऐसे मसादीक जिनसे मुतालिक जिद्दी और हठ धर्म अफराद भी कोई बहाना नहीं बना सकते
کہ जिस की मिसाल इसी वसीयतनामे के आखिर में हम मुलाहिजा करेंगे। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम अपने इस वसीयतनामे में मजीद फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि बल्कि उनसे सुन्नत के जरिए बहस करो कि इससे बचकर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और फिर लिखा है कि इस कलाम पर गवाह वो दास्तान है जो किताब अल मुस्तरशद के मौलिफ तिबरी ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नकल की है, और उसका खुलासा ये है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह को खवारिज के साथ गुफ्तगू के लिए भेजा तो खवारिज ने कहा कि हमारे अली अलैहिस्सलाम पर चंद एतराजात हैं। अच्छा, यहाँ पे सामीन मैं बताऊं कि जो एतराजात हैं वो कुल यहाँ पर दिए हुए हैं 6। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, हकमैन के सुलहनामे में आप अलैहिस्सलाम के लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब लिखा गया, मगर उम्र आस के एतराज पर उसे मिटा दिया गया। 2, हकमैन से कहा गया कि देखो अगर मुआविया इस खिलाफत के लिए मुझसे ज्यादा सजावार है तो उसी को खलीफा बनाओ। नंबर 3, एक सवालिया जुमला है कि वो खुद कजावत में सबसे ज्यादा आगाह थे तो क्यों इस काम को हकमैन के सुपुर्द किया। नंबर 4 भी सवालिया जुमला है कि दीन खुदा में हकमैन को क्यों कबूल किया जबकि हाकिम सिर्फ खुदा की जात है। नंबर 5 भी सवालिया जुमला है कि जंग के दिन बसरा में क्यों उनके असलहों और जानवरों को हमारे दरमियान तकसीम किया और उनकी औरतों और बच्चों को हमारे दरमियान तकसीम न किया। नंबर 6 ये भी सवालिया जुमला कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जानशीन थे तो क्यों अपना मकाम जाया कर दिया और लोगों को अपनी तरफ दावत न दी। और ये 6 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर उनके एतराजात बयान किए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से फरमाया कि तुम उनसे कह दो कि तुम खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर राजी हो या नहीं। वो कहेंगे कि हाँ, तो तुम उनके तमाम एतराजात का यूं जवाब दो कि ये जो मैंने उन्वाने अमीरुल मोमिनीन मिटाने का हुक्म दिया तो दर हकीकत ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी थी कि सुलह हुदैबिया के दिन मुशरिकीन के साथ सुलहनामे में जब मैंने लिखा था कि हाजा मा सालहा बिही मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मुशरिकों के नुमाइंदों ने एतराज किया कि हम उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते, लिहाजा ये लक़ब मिटा दिया जाए। उस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि इस लक़ब को मिटा दूं और मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अली अलैहिस्सलाम, आप भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार होंगे। तो जब ये जवाब खवारिज को दिया गया तो वो मान गए। अगले पैराग्राफ में कि तुम्हारा ये कहना कि मैंने खुद पर शक करते हुए हकमैन से कहा जिसको तुम मुझसे ज्यादा सालेह जानते हो उसी की तस्दीक करो, तो ये उस हुक्म की तशबीह है जो कुरान मजीद ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था और फरमाया था इन्वर्टेड कॉमा में सूरह सबा की आयत नंबर 24 में इन्वर्टेड कॉमा कि वो बेशक हम राह रास्त पर हैं या तुम। दोबारा पढ़ते हैं कि और बेशक हम राह रास्त पर हैं या तुम, या हम में से एक खुली गुमराही में पड़ा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हालांकि यकीनन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर थे। जब खवारिज ने ये जवाब सुना तो कबूल किया। फिर तुम्हारा ये कहना इसके बावजूद कि मैं कजावत में सबसे ज्यादा आगाह था, हकमैन को क्यों कर कबूल किया, तो ये भी दर हकीकत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी करीजा काफरे ये जोए है करीजा के यहूदियों के बारे में हकमियत को साद बिन माज रजी अल्लाह के हवाले किया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कजावत में सबसे ज्यादा बरतर थे। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद होता है जो कि सूरह अहज़ाब की आयत 21 है, तर्जुमा, यकीनन तुम्हारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर बस मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की है। जब खवारिज ने ये जवाब सुना तो मान गए।
तुम्हारा ये कहना कि क्यों मैंने जंग जमल की फतह के बाद उनके असलहों और जानवरों को तकसीम किया मगर उनकी औरतों और बच्चों को तुम्हारी गुलामी में नहीं दिया, तो दरहकीकत मैं अहले बसरा पर एहसान करना चाहता था और ये वही काम है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के साथ किया था। इसके अलावा तुम में से कौन हाजिर था कि आयशा रजी अल्लाह को अपने हिस्से में कबूल करता और उन्हें अपनी कनीज बनाता? जब खवारिज ने ये सुना तो फिर कबूल किया। अब लिखा है कि फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके आखिरी एतराज के जवाब में फरमाया कि ये जो तुम मुझ पर एतराज करते हो कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन था, बस क्यों मैंने लोगों को अपनी तरफ दावत नहीं दी? तो इसकी दलील ये थी कि तुम लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया और किसी और को मुझ पर मुकद्दम किया। यूं तुम ही लोगों ने मेरे मकाम जानशीनी को जाया कर दिया है, न कि मैंने। फिर लिखा है कि इमाम और वसी पैगंबरों की तरह नहीं होता जो लोगों को अपनी तरफ बुलाए। वो पैगंबर की तरफ से तकर्रुरी के बाद लोगों को अपनी तरफ बुलाने से बेनियाज हो जाता है। वो दर हकीकत काबे की तरह होता है कि लोग उसकी तलाश में आते हैं, न ये कि काबा उसकी तलाश में जाए। जब खवारिज ने ये जवाब सुना तो उसे भी कबूल किया। इसी वजह से उनमें से 4000 अफराद राह हिदायत पर लौट आए और एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद 12000 थी, जिनमें से 8000 नफूस राह हक की तरफ लौट आए और अकलियत यानी 4000 अफराद बाकी रह गए जिन्हें लश्कर अली अलैहिस्सलाम ने नाबूद कर दिया। और यहाँ पर हवाला आपने नोट करना है कि शरह नहजुल बलागा अल्लामा शोस्तरी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 423। ये हदीस कुछ फर्क के साथ तारीख याकूबी में भी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 192 पर नकल हुई है। सामाइन यूं तफसीर मुकम्मल हुई और अब आइए नुक्ता पढ़ते हैं। हेडिंग है सुन्नत से इस्तदलाल क्यों, ये सवालिया निशान है और इसकी तफसीलात हैं कि इस मकतूब में इमाम अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से ये जो फरमाया कि जब खवारिज से गुफ्तगू करो तो सुन्नत के जरिए जवाब देना, न कि कुरान के जरिए, क्योंकि कुरानी आयात कई पहलुओं और तफासीर की हामिल होती हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मुमकिन है कि इनमें दो मतालिब की तरफ इशारा हो, तो इस मतलब की तौज़ी कुछ यूं है। नंबर 1 और नंबर 2 करके दी हुई है। नंबर 1, कुरान मुहकमात और मुतशाबिहात का हामिल है, यानी कुछ आयात बिल्कुल वाज़े हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए मुमकिन है कई मानी बयान किए जाएं। जब ये दोनों किस्म की आयतें आपस में मिलाई जाती हैं तो कुछ कामिल मफाहीम सामने आ जाते हैं। मसलन आयत इन्नल हुक्मुल इल्ला लिल्लाह है कि हुक्म सिर्फ खुदा के लिए है। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 तर्जुमा के हुक्म सिर्फ खुदा के लिए है। इसको इस आयत शरीफा जो के सूरह निसा की आयत नंबर 35 है उसके साथ मिलाया जाता है कि फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, इसके साथ मिलाया जाता है। तो इसके साथ मिलाया जाए तो मालूम हो जाता है कि खुदा की हकमियत और कजावत के मानी ये हैं कि जो भी हकमियत और कजावत करे तो कुरान और हुक्म खुदा के मुताबिक होना चाहिए और जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला हर इनफरादी मामले और कजावत के लिए आयत नाजिल फरमाए। लिखा है कि लेकिन जिनके दिलों में रोग है और कुरान के बकौल जो कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 है कि अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैउन, कि वो मुतशाबे आयात को लेते हैं और मुहकमात को छोड़ देते हैं और आयात की अपनी नाजायज ख्वाहिशात के मुताबिक तफसीर करते हैं। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से फरमाते हैं कि कच फहम और कूर दिल काफ वाव रे काफ पे पेश है। मुनाफिकों से बहस के लिए कुरान की तरफ रुजू न करना, क्योंकि उस सूरत में मुहकम और मुतशाबे की वसी बहस दरपेश आएगी और वो लोग अपना मतलब हासिल करने के लिए सिर्फ मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहेंगे। अब आइए दूसरे नंबर पे लिखा है कि कुरान मजीद चूंकि इस्लामी बुनियादी कानून की हैसियत रखता है, लिहाजा फितरी तौर पर मसाइल को कुल्ली तौर पर बयान फरमाता है और बाज औकात कच फहमी या हट धर्मी की बिना पर कुल्लियात के मसादीक पर तत्वीक
کے سلسلے میں غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جبکہ سنت بہت سے موارد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی فعل کی صورت میں ہوتی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی بحث و نزاع نون زے الف عین کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کہ بنی قریظہ کی داستان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاوت سعد بن معاذ رضی اللہ کے حوالے فرمائی اور یہ بجائے خود خوارج کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہے جو کہتے تھے کہ قضاوت اور حکمیت صرف خدا کے لیے ہے۔ جی ہاں، سنت کا ایک بڑا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال پر مشتمل ہے جو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے ہیں، جبکہ قرآن صرف خدا کا کلام ہے اور ان باتوں میں اگرچہ طالبان حق کے لیے کوئی ابہام نہیں، لیکن مغرور اور ہٹ دھرم افراد ان سے غلط فائدہ اٹھانے کے درپے ہوتے ہیں۔ سامعین، مکتوب 77 اختتام ہوا۔ آئیے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔